Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed about the lipids. We said that lipids are made up of alcohol and fatty acids. So, alcohol and fatty acids will be combined by an ester bond, and therefore lipids are known as esters of fatty acids with alcohol. In the topic of lipids, we had discussed that there are different types of lipid molecules. For example, butter, ghee, cholesterol, vitamin A, carotene, lycopene were some of the examples of the lipids. तो जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स जो है दे आर मेड अप ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड. तो हमने स्टार्ट किया था विद द डिस्कशन ऑफ द फैटी एसिड्स that fatty acids are mainly of two types. There are saturated fatty acids and there are unsaturated fatty acids. The saturated fatty acids will not be accepting any hydrogen or halogen group because all the carbons will be linked by a single bond. There is absence of any double bond in the saturated fatty acids. Whereas in unsaturated fatty acids, there is presence of one or more double bonds. More the number of double bonds, more will be the unsaturation of the fatty acid. So there are saturated fatty acids which are having higher melting point, whereas unsaturated fatty acids were having a lower melting point. The saturated fatty acids included palmitic and stearic acid, whereas unsaturated fatty acids includes oleic acid, linoleic acid, linolenic acid and arachidonic acids were some of the examples in which oleic acid, linoleic acid there was presence of मतलब एक डबल बॉन्ड होता है तो ओलिक एसिड का एग्जाम्पल, दो डबल बॉन्ड थे they were present in linoleic acid. So in this way the number of double bonds are going to increase. Remember, in the lipids the number of oxygen is very less than the number of the carbon or the number of the hydrogen, and therefore the ratio of hydrogen to oxygen does not remain 2:1, right? Because the number of oxygen is very less. We have also looked upon the formula for saturated and unsaturated fatty acids. Now we are moving on to the next topic, and that is the different types of lipids. हमने ये तो बात कर ली है कि लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड्स और अल्कोहल से बनते हैं, पर ये लिपिड्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो लिपिड्स जो हैं दे आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ lipids. The three types of lipids are the first one, that is the simple lipids. The first one are the simple lipids. The second one are the compound lipids. And the third one are known as the derived lipids. मतलब lipids जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं. अब सिंपल लिपिड्स की जब बात करते हैं तो सिंपल लिपिड्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली फैटी एसिड एंड अल्कोहल. इनमें कोई भी एडिशनल ग्रुप्स नहीं होते. दे आर मेड अप ऑफ ओनली fatty acids with the alcohol, और you can say alcohol esterified with the fatty acid, और इनमें एडिशनल कोई भी ग्रुप होता नहीं है. उसे कहा जाता है सिंपल लिपिड्स. कंपाउंड लिपिड्स हम तब कहते हैं जब फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ साथ कोई एडिशनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनको हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में होते हैं, राइट. अल्कोहल के साथ साथ अगर अलग तरह का अल्कोहल है तो स्फिंगोलिपिड्स जो हमारे माइलिन शीथ मतलब नर्व सेल में प्रेजेंट है.
तो ये जो है वो थोड़े बहुत मॉडिफाइड होते हैं, राइट। दे आर हैविंग सम एडिशनल ग्रुप अलोंग विद द फैटी एसिड एंड अल्कोहल। और थर्ड टाइप के जो लिपिड्स हैं वो है डिराइव्ड लिपिड्स। अब ये जो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं दे हैव the presence of alcohol, fatty acid, but they show just property like lipids. They are not very true lipids. For example, prostaglandins जो है, right? या तो फिर cholesterol जो है, cholesterol is not having fatty acid, but the properties are very similar to that of the fatty acids. इसीलिए उनको अलग कैटेगरी में रखा है derived lipids. So today first we are going to discuss about the simple lipids. हम simple lipids की बात करेंगे आज। तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं simple lipids. So simple lipids, they are the one that are made up of fatty acid and a trihydroxy alcohol. They are made up of fatty acids and along with fatty acids there will be the presence of the trihydroxy alcohol. मतलब जो अल्कोहल होता है that will be having presence of 3 hydroxyl groups. So simple lipids के examples अगर हम देखें तो it includes the examples like न्यूट्रल फैट्स जिन्हें कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड, न्यूट्रल फैट्स और ट्राइग्लिसराइड दे आर आल्सो नोन एज ट्रू फैट्स। इसके अलावा एग्जांपल्स लाइक क्यूटिन और सुबेरिन और वैक्सेस, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल लिपिड्स। इसमें से वैक्सेस जो है उनमें ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल नहीं होता, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल ग्रुप थोड़ा वेरी हो सकता है, बट इन शॉर्ट दे डू नॉट हैव एनी एडिशनल ग्रुप्स। मतलब अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा कोई भी एडिशनल ग्रुप इनमें नहीं है, तब उन्हें क्या कहा जाता है, सिंपल लिपिड्स कहा जाता है। तो सिंपल लिपिड्स are the lipids which will be having fatty acid with an alcohol. That alcohol can be either a trihydroxy alcohol or it can be a monohydroxy alcohol. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स थोड़े लिखे हैं। न्यूट्रल फैट्स जो है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। क्यूटिन जो होता है वो प्लांट में क्यूटिकल पे प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल जो है दैट इज अ वैक्सी कोटिंग which is present on the surface of the leaf. लीफ जो होता है उसकी सरफेस पे एक थिन वैक्सी कोटिंग होता है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, और क्यूटिकल में केमिकल कंपोजिशन 50 to 80% क्यूटिन होता है। सुबेरिन आपको पता होगा, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उनमें डिपॉजिट होता है सेल वॉल में, which makes the cell wall very hard and rigid. ओके, और वैक्सेस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एनिमल फर पे भी वैक्सेस होते हैं, हमारे ईयर में भी वैक्स रिलीज होता है, राइट। कैंडल्स में जो यूज होता है वो भी एक पैराफिन वैक्स है। तो वो सारे वैक्सेस में एग्जांपल्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट न्यूट्रल फैट्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूट्रल फैट्स, तो न्यूट्रल फैट्स जो है दे आर मेड अप ऑफ 3 fatty acids and 1 ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, और उसमें भी जो ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रेजेंट है उसका नाम है ग्लिसरॉल। तो जब हम न्यूट्रल फैट्स कहते हैं तो न्यूट्रल फैट्स में होते हैं 3 फैटी एसिड्स और along with 3 fatty acids there is a trihydroxy alcohol which is known as glycerol. तो यहाँ पे ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे। The neutral fats they are also
known as triglycerides. The another word used for the neutral fats is triglycerides. Tri is over here 3 fatty acids and glyceride because the alcohol group जो है वो ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इंस्टेड ऑफ 3 फैटी एसिड्स अगर 2 ही फैटी एसिड्स हो, इफ देयर आर ओनली 2 फैटी एसिड्स तो उसे डाइग्लिसराइड कहते हैं, और अगर एक ही फैटी एसिड है तो उसे मोनोग्लिसराइड कहते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसराइड। पर ग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड्स हैं तो ट्राइग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड्स हैं तो डाइग्लिसराइड, और एक ही फैटी एसिड है तो उसे हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड। अब हम न्यूट्रल फैट्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो न्यूट्रल फैट्स जो है उनमें हमने कहा कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल है उनमें, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, राइट। और आप देख सकते हो 3 बार यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, इसलिए यहाँ पे अटैच होने वाला जो अल्कोहल है उसे ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है। तो ये हो गया ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। अब हमें फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में हमें पता है इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद अ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो वी नीड टू शो अ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड होंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि फैटी एसिड्स की रेंज 4 कार्बन से लेके 24 कार्बन तक एक्सटेंड होती है, जिसमें 16 कार्बन फैटी एसिड हो सकता है, 18 कार्बन, 20 कार्बन फैटी एसिड भी हो सकता है, राइट। तो उसको स्पेसिफिकली ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, R1, मतलब R1 हियर इंडिकेट्स अ फैटी एसिड, और फैटी एसिड के टर्मिनल एंड पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। Similarly, we need to show the second fatty acid, so it will be R2, and we need to show the third fatty acid, that is R3. So here we have a glycerol, and these are the 3 fatty acids, right? R1, R2 and R3 represents 3 fatty acids, and there will be resulting into formation of a triglyceride. तो triglyceride कैसे बनेगा? There will be removal of the water molecule. There will be removal of how many water molecules? 3 water molecules, because there are 3 fatty acids going to attach. So once this is removed, how we can mention the structure? We will be writing it CH2O OCR1, right? What we have done? Removed a water molecule. Same way we will be mentioning CHOOCR2 and CH2OOCR3. This will be the structure of the ट्राइग्लिसराइड। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, पर रिमूव क्या हुआ है? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये है एस्टर बॉन्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड होता है, इसीलिए लिपिड्स को कहा जाता है एस्टरिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अब यहाँ पे अगर 2 ही फैटी एसिड होते, R1 और R2, तो ये स्ट्रक्चर को हम कहते डाइग्लिसराइड, और एक ही फैटी एसिड होता तो हम उसे कहते मोनोग्लिसराइड, राइट? सो इन दैट वे there will be formation of the triglycerides, as you can see over here. Now another important thing is that ये तो हमने ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बता दिया, पर ये ट्राइग्लिसराइड में तीनों फैटी एसिड्स
रेयरली सिमिलर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि तीनों में पैल्मिटिक और पैल्मिटिक एसिड ही हो, राइट? देयर कैन बी अ पैल्मिटिक एसिड, देयर कैन बी अ स्टेरिक एंड देयर कैन बी एन ओलिक एसिड also. So on the basis of that, we mentioned two types of neutral fats. Neutral fats जो है, they will be either true fats or mixed fats. Mixed fats तब कहते हैं जब all the three fatty acids are different. All three fatty acids are different. और true कब कहते हैं? when all three fatty acids are same. मतलब अगर R1, R2, R3 तीनों फैटी एसिड सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू फैट्स. और अगर एक पाल्मिटिक है, एक स्टेरिक है, एक ओलिक एसिड, तीनों फैटी एसिड अलग हो तो हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फैट. मिक्स्ड फैट में हम कॉमनली एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ द बटर. मिक्स्ड फैट में हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ बटर, जो एक मिक्स्ड फैट का एग्जांपल है. नाउ अनदर थिंग इज दैट द neutral fats can be again of two types, that is hard fats and oils. दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं न्यूट्रल फैट्स. हार्ड फैट्स होते हैं और ऑयल होते हैं. तो हार्ड फैट्स जो होते हैं वो मोस्टली उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जबकि ऑयल्स जो होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है. ओके, आपने शायद ये एक एग्जाम्पल शायद पढ़ा होगा जिसे कहते हैं डालडा घी या वेजिटेबल ऑयल. तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है. Unsaturated fatty acids can be converted to saturated fatty acid by the mechanism known as hydrogenation. By the mechanism known as hydrogenation. तो यहाँ पे hard fats और oils की हमने बात की. Obviously, the oils will have low melting point, whereas the hard fats will be having higher melting point. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑयल की है, ऑयल विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हार्ड फैट्स विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड का डिफरेंस था, वही डिफरेंस यहाँ पे हार्ड फैट्स और ऑयल्स के बीच में भी रहता है. सो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लिपिड्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, सिंपल लिपिड्स, राइट. और सिंपल लिपिड्स में हमने और एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, क्यूटिन, सुबेरिन एंड वैक्सेस, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देती हूँ. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स by the mechanism called hydrogenation. By the mechanism known as hydrogenation. So that is all about today's lecture. You need to understand what are simple lipids made up of alcohol and fatty acids, जिसमें neutral fats, cutin, suberin, waxes include होते हैं. कोई एडिशनल ग्रुप नहीं होता, कोई फॉस्फेट ग्रुप या तो कोई और एडिशनल अलग सा अल्कोहल, ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट. सो न्यूट्रल फैट्स जो होते हैं उन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है. इनमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एक अल्कोहल होता है. समझिए कि 3 ग्लिसरॉल नहीं है, ये एक ही है, राइट. CH2OH, CHOH, CH2OH is one alcohol which is called glycerol. और फैटी एसिड्स 3 हैं, इसलिए हमने R1, R2 और R3 यहाँ पे लिखा है. So that is about the neutral fats. We will next discuss about waxes, cutin and suberin in brief, and then after we will talk about the compound lipids, जिसमें आएगा phospholipids and sphingolipids.